well during this time. Students, as you know that currently you are staying at your home and you are using your precious time in studying with the online classes. You have to be careful while staying at your home, while going outside. You have to follow the rules and regulations of the COVID-19. With this, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the most important lecture on the Python programming language. Students, as you know that right now your chapter number 7, that's your iterative statement in Python, this is going on. And today we are going to have the practical demonstration based on iterative statement. That is, we are going to take only one thing, that's your for loop. We are going to take the practical demonstration for the for loop. And also one more thing I just want to tell you, in the previous video you have watched the theory portion of for loop as well as the while loop. Okay? And one important thing I just want to tell you here, in the looping, 3 things are come: for loop, while loop, and one more, do while loop. But in the Python, only 2 loops are there: for loop and while loop. There is no concept of do while loop. But if you study Java, C, C++, definitely you will get 3 kinds of loops. Okay? With this, now I just want to give you a warm welcome on this channel. Now students, it's time to have the practical demonstration of this topic. So what are you waiting for? Please come to my laptop screen so that we can start this amazing practical demonstration. Please come. Now I am going to start the class. In today's class, we will have the practical demonstration of the iterative statement. We'll do some programs here and we'll practically see how we are going to use the syntax in the programming language for the for loop, okay, or iterative statement. Okay, so students, as you know that today we are going to have the topic iterative statements. The topic is iterative statements. So first of all, in iterative statement, you are already knowing that the statement which are repeating themselves as long as the condition become true. जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होती रहेंगी. अब सिंटेक्स के हिसाब से जो इसमें आपकी जो कंपोनेंट्स हैं इट्स इटरेटिव स्टेटमेंट में, एक तो आपका होता है स्टार्ट वैल्यू, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर c इक्वल टू 0, एक स्टार्ट वैल्यू हो गई. एक आप देंगे टेस्ट कंडीशन, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक आपका होगा. जैसे आपने यहाँ टेस्ट कंडीशन दे दिया c इज लेस देन इक्वल टू 6, टेस्ट कंडीशन. और तीसरी जो वैल्यू होती है वो होती है स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू ये किस लिए होता है? ये आपका होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 2 चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक चीज़ के लिए. तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स. ये तीनों ही कंपोनेंट्स आपकी यूज़ होते हैं कहाँ पर? सिंटेक्स जब हम यूज़ करेंगे, सिंटेक्स बनाएंगे तब होगा ये. चलिए सिंटेक्स भी देख लेते हैं एक बार हम इसमें फॉर लूप का जो हम सिंटेक्स है वो भी हम देख लेते हैं. सिंटेक्स 2 तरीके के हैं. सिंटेक्स आपका 2 तरीके का है. पहले आपने लिखा फॉर लिखने के बाद अब आपने यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया. जो भी आपका कंट्रोल वेरिएबल है वो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पर जो कंट्रोल वेरिएबल है ये क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल एक तरह का वेरिएबल ही है जो हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं. क्यों? ताकि जो इनिशियल वैल्यू है वो आपका स्टोर हो सके.
ठीक है। और वो जो इनिशियल वैल्यू है आगे चल के स्टेप वैल्यू में जब जाएगा यूज होगा तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो कंट्रोल वेरिएबल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन। ओके, तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो आपने क्या किया, पहले फॉर लिखा, वेरिएबल आपने डिफाइन किया, और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे इन क्या है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अब आपने यहाँ जो मेंशन किया है वो है आपका क्या चीज़, सीक्वेंस, वो है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, ये सब चीज़ें। अब इतना करने के बाद अब प्रॉपर आप इंडेंट देंगे, ठीक है। फॉर जहाँ लिखेंगे वहाँ से 4 स्पेस देंगे आप, और यहाँ पर फिर आपका जो कंडीशंस है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लूप स्टेटमेंट्स, जिसको रिपीट करवाना है वो स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं ये। तो अभी तक आपने जो लिखा आपने, ये किसके लिए था, वो आपका था केवल और केवल एक आपका तरीका था। लेकिन यही चीज़ अगर हम किस रेंज फंक्शन के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेंज फंक्शन के साथ पहले आपने लिखा फॉर के बाद आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद इन ऑपरेटर यूज़ किया, फिर आपने यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ किया। तो रेंज फंक्शन में टोटल आपकी 3 चीज़ें आती हैं। यहाँ पर रेंज फंक्शन में टोटल आपकी आती हैं 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा आपका आएगा फाइनल वैल्यू, और तीसरा आपका हो गया यहाँ पर स्टेप वैल्यू कितने का आपको अंतर देना है यहाँ पर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 होता है ये स्टेप वैल्यू। और इसके बाद अब आप यहाँ पर जो लूप स्टेटमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 2 अलग अलग मैंने लिखे हैं, लेकिन आपका लगभग दोनों एक ही है आपका। आप या तो ऊपर वाला यूज़ करिए या तो नीचे वाला। तो ये मैंने जितना भी बताया ये क्या था, हमारा सिंटेक्स। ओके, अब हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि इस सिंटेक्स में हम लूपिंग वगैरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप में सिंटेक्स तो हमने देख लिया। अब फॉर लूप के अंदर जो मेंबरशिप ऑपरेटर है और जो रेंज फंक्शन है, दोनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। ओके, so we are going to understand about membership functions, or you can say membership operator. So right now membership operator is of 2 kinds. First one in and the second one not in. ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर्स में ही लिखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो किस काम में आता है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ वे थ्रू विच यू कैन कंट्रोल द वर्क ऑफ द लूप। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द in operator, okay, it means that if the elements of the sequence are getting existed or not, it will check. Okay, कहने का मतलब क्या हुआ, if in operator is used in the for loop, it will check if the given value is existed in the sequence or not. जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं अपने सीक्वेंस के अंदर, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को हम पता करते हैं किससे, इन ऑपरेटर से, ठीक है। नॉट इन का मतलब क्या होता है, नॉट इन का मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, हमारे सीक्वेंस में, ठीक है। तो ओवरऑल अब जब आप अपने पाइथन के स्टेटमेंट्स में आप इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो 2 तरीके से मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ट्रू या तो मिलेगा फॉल्स। अगर हम इन ऑपरेटर की बात करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन ऑपरेटर की, तो इन ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर वो वैल्यू, गिवन वैल्यू सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है तब तो आपको मिलेगा ट्रू, और नहीं तो आपको मिलेगा फॉल्स, नहीं तो आपको मिल जाएगा फॉल्स।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉट इन की, तो अगर गिवन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती सीक्वेंस के अंदर तब आपको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने पाइथन के स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं और देखते हैं क्या इसका इस्तेमाल है। ठीक है, ये रहा आपका पाइथन की स्क्रीन, और इस पाइथन के स्क्रीन पर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे 10 के बाद लिखेंगे इन, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। यहाँ लिखिए 10, 20, 30, 40 स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद ये वाला राउंड ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में देख रहे हैं आप कि ये जो आपका 10 है, ये 10 इस लिस्ट में यानी सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है। सो आंसर आना चाहिए ट्रू। ये देखिए आंसर आ गया ट्रू। लेकिन अगर हम यहीं पर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हमने कर दिया है 50 सीक्वेंस में नहीं है, लिस्ट में नहीं है, अब आपका इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर नॉट इन लिख देते हैं, अगर यहाँ में लिख दिया नॉट इन, तो 50 नॉट इन और ये आपका सीक्वेंस हो गया। फिर 50 अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्रू आएगा, ये देखिए ट्रू आ गया। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 40 देखिए इस लिस्ट में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 40 नहीं है तो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो ये रहा यूज हमारा कि किस चीज के लिए, नॉट इन और इन का जो यूज है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद अगर हम चाहें तो यूजर के द्वारा हम यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं, यूजर से सीक्वेंस हम एंटर करा सकते हैं, और एंटर कराने के बाद फिर हम चेक करा सकते हैं वो वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है उसको हम चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूं आपको। मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा a इक्वल टू इनपुट, और यहां लिखूंगा मैं एंटर द वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। और चूंकि ये हम इंटीजर वैल्यू चाहते हैं इसलिए हम शुरू में इंट ज़रूर लगाएंगे, हम शुरू में इंट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू इंटर हो गई है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू है। सपोज करिए मैंने दे दिया यहाँ 20 दे दिया। अब 20 ये स्टोर हो चुके, ए के अंदर 20 स्टोर हो चुका है। और अब हमें जो चेक करना है, अब हमें चेक करना है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, सपोज करिए ये वाली लिस्ट मैंने ले ली है, कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर हमने कर दिया है 20, यहाँ कर दिया हमने 20। तो 20 क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या यहाँ 20 एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 20 नहीं लिखा, ए लिख दिया, 20 नहीं लिखा, ए लिख दिया। ए का मतलब जो हमने वैल्यू इनपुट की है, जो हमने वैल्यू इनपुट की है। ठीक है, तो a इक्वल टू 20 है, 20 अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। ये देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, ये आपका ट्रू आ गया। इसी के साथ अगर हम इस स्टेटमेंट को दोबारा अगर एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पर 33। ठीक है, अब 33 देने के बाद अब अगर यहाँ पर इस स्टेटमेंट को दोबारा हम अगर यहाँ पर पेस्ट कर दें अगर हम, और यहाँ पर हम चेक करें 33 इस लिस्ट में है या नहीं है, आंसर आपको दिखाई देगा फॉल्स। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि आपको इन और नॉट इन ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इस चीज़ को लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर पाइथन स्क्रीन, it is open within a few seconds, and meanwhile we are going to use the membership operator in the for loop. Okay,
So for this, what you are going to do there, first of all, we are coming to the script mode. Now this is the script mode. In this, we are going to make the program for you. First you written for, then variable, and after writing the variable you will use in operator. Then you have to give the sequence. Okay, so in sequence I have just written here 10, 20, then 30, then 40. Okay, and I have told you that you have to use the colon operator to terminate the statement, right? Then after, press enter button to come to the new line, then write here print, and after that you will just write here I. Now program is over. After that you have to just save your program like this. Suppose I have saved this program on the Python desktop, I mean to say on the desktop. So this is the way to come to your desktop. Now after that, just write your name. Just write your name. Suppose the file name is V, then file extension is py. After that, it is saved. Once it is saved, now you have to go to the run, then go to the run module. So you will, within few seconds you will have the answer. So you will have the answer 10, 20, 30 and 40. This is your answer, right students? So how do you come to know that this is your answer? Okay, what is happening here? First of all, this is the I is the variable, I is assigned to 10. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर i इक्वल टू जो 10 है वो असाइन होने के बाद चेक हो रहा है कि क्या सीक्वेंस में है, अगर है तो 10 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से i इक्वल टू 20 हुआ, i इक्वल टू 20 हुआ, 20 भी देख रहा है कि लिस्ट में है या नहीं है तो वो प्रिंट हो गया। ऐसे ही 30 के लिए, ऐसे ही 40 के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे टू यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर in the for loop, right? Now students, it's time to come to use the range function in the for loop. Range function in the for loop, ठीक है? तो रेंज फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि रेंज फंक्शन में 3 वैल्यूज आती हैं। नंबर 1 स्टार्ट वैल्यू, नंबर 2 फाइनल वैल्यू, नंबर 3 स्टेप वैल्यू, राइट? नाउ what you'll do here, first of all, what is range function? Let me tell you again. Range function is nothing but it is the function which gives you the sequence with the elements. एक sequence आपको मिलेगा, एक list मिलेगी जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक list होगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद सपोज करिए मैंने यहां लिखा i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 10। अच्छा, i इक्वल टू 10 के बाद मैंने यहां लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट, फिर मैंने कहा i इन रेंज, i इन रेंज, और रेंज के बाद ब्रैकेट, ये रहा स्टार्टिंग वैल्यू, ये हो गया 20, ठीक है? फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है? अब कंट्रोल, अब हम फॉर लूप में रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो आउटपुट है वो आएगा ये, ठीक है? चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को दोबारा ओपन करता हूँ। मैं ओपन करने के बाद फाइल पे, फाइल के बाद ओपन पे गया, और ओपन पे जाने के बाद अब यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर एक फ़ाइल मैंने बनाया है और उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पर है ये। नाउ स्टूडेंट्स, finally it is open now. Finally you are able to see here the I equal to 10. This is the initialization, यानी कि मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया है, शुरुआत कर दी है यहाँ पर। फिर मैंने प्रिंट के अंदर लिखा I in range 10, 20, ठीक है? चलिए अब हम इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं आउटपुट क्या आता है यहाँ पर। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आपका इसका आंसर आया ट्रू। मतलब ये हुआ i की जो वैल्यू 10 है, i की जो वैल्यू है वो वैल्यू कंसिस्ट कर रही है कहाँ पर,
आपकी जो रेंज आपने डिफाइन किया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है इसकी जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आप सेपरेटली इसको रन करोगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ये लिस्ट बनेगी यहाँ पर, ठीक है, सेपरेटली अगर आप रन करेंगे रेंज फंक्शन को तो। यानी कि आपने बता दिया यहाँ से कि 10 से स्टार्ट करना है तो इंक्लूड करेंगे 10 को, और यहाँ पर 20 तक नहीं जाएंगे, 19 तक जाएंगे, एक कम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो रेंज फंक्शन है उसको आपने यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह से अब हम रेंज फंक्शन को फॉर लूप में यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ लिखूंगा फॉर के बाद आई के बाद इन के बाद यहाँ लिखूंगा मैं रेंज के बाद 10, 20 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैंने लगा दिया कोलन, और सिंपली मैं यहाँ पर इस जगह पर केवल मैं आई को प्रिंट करूँगा, दैट्स इट, केवल आई को, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है यहाँ पर। पहले मैं फाइल को सेव करूँगा, सेव करने के बाद रन करेंगे। अब रन करने के बाद अभी आपकी एरर आएगी क्योंकि यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंडेंटेशन का स्पेशल हमें ख्याल रखना होता है। स्टूडेंट्स, from the boundary of the page you have to give 4 spaces while using the while loop or while using the for loop, okay, 1 2 3 4, okay. So please ensure that. Now one more time you have to save the file and then you have to run it. Finally you are able to see here the range function consists of these elements. It's starting from 10 and end with 19, okay. So I hope students you are able to understand what I am trying to say here, okay. Now if you want to have the square of any of the number, okay, suppose you want the square of all the numbers from starting from 10 to 19, then what you'll do here, what you'll just put here star and then I here, put star and then I here, ठीक है। चलिए अब इतने को सेव करके रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। नाउ इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। फाइनली यू आर एबल टू सी हियर 100, 121, 144, okay. So you will getting the square of each number which belongs to your list, okay. So students, what is happening here, okay, इसमें हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आई सबसे पहले क्या हो रहा है, 10 को एज असाइन हो, आई पहले असाइन हो रहा है, ये किसके पास, 10 के पास, ठीक है। जब असाइन हो गया ये, वो चीज़ आपकी प्रिंट हो गई, फिर आई इक्वल टू 20 हुआ, 20 भी प्रिंट हो गया, आई इक्वल टू आपका, फिर आपका ये एक एक करके जो वैल्यूज़ है वो इनिशलाइज हो रही हैं, असाइन हो रही हैं, फिर आपकी प्रिंट हो रही हैं ये, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था हमारा फॉर लूप का ये, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो बारी है हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप वैल्यू का भी यूज़ करके देखते हैं क्या होता है ये। अब मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा, यहाँ मैं लगाऊंगा कॉमा लगा के बाय डिफॉल्ट तो स्टेप वैल्यू 1 होती ही है, लेकिन अब मैं 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने को सेव करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। सी द आउटपुट 10, 12, 14, 16 और 18। मतलब क्या हुआ, इसने हर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से एक एलिमेंट्स को, हर दूसरे एलिमेंट्स को स्किप कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने 2 लिखा है, ठीक है। और स्किप करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट्स हैं जो आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये वैल्यूज़ हैं ये। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए सबसे पहले 10 इंक्लूड होगा, 10 के बाद 11 को छोड़ना है, यहाँ आ जाएगा 12, फिर एक और छोड़ना है, 13 छोड़ना है, 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 19 आप छोड़ देंगे आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ओके स्टूडेंट्स।
नाउ वी आर गोइंग टू चेंज सम द वैल्यू ऑफ स्टेप. ओके, कैसे चेंज करेंगे ये देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट टू 3. It means then whatever the third elements is there in the list, that will be considered here. Okay, let's see what is the output of this program. Just click on run, then go to the run module. After that, what will happen here? Let's see. See, 10, 13, 16, 19. Every third element is considered here. Okay, means two elements are skipped here, and third element is considered here. Okay, so that's the magic of your step value, right? Okay, let's see one more program here. Okay, and in this program we'll have some of the programming features of the Python, and we are going to use the number. Okay, and that number will be the factorial of the number. Okay, so right now we are going to make the program for factorial of the number. Okay, write a program for finding the factorial of number. Factorial of number. Okay, now what I'll do here, what you will do here, first of all we have to understand what is factorial. Okay, फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए 5 और फैक्टोरियल का साइन जो होता है वो ये होता है. अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है कि क्या होगा इसका, तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहले क्या होगा, आपको इस तरीके से लिखना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, 5 4 3 2 1 और सबको मल्टीप्लाई करना है. जो भी आंसर आएगा वो हमारा मेन हमारा आउटपुट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को करना कैसे है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. अब मैं सबसे पहले एक वैल्यू हम इंटर करा लेते हैं कि किसका फैक्टोरियल निकालना है. इंट के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे इनपुट के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर एंटर द नंबर, फिर इसको हम अपने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. वैल्यू को एंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं. जैसे यहाँ पर क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद 2 आएगा 3 आएगा, तो 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया. 1 को इनिशियलाइज करने के बाद अब हम लूप का इस्तेमाल करेंगे. लूप में हम लिखेंगे आई के बाद इन ऑपरेटर, इन के बाद हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे. रेंज के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ पास करनी है. ठीक है, एक हमारा जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगा, इसे तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे, और दूसरी वैल्यू में अगली वैल्यू आपकी ऐड हो रही है. यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी ऐड हो रही है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a+1. सपोज करिए a की जो वैल्यू है वो आपने लिखे है यहाँ पर 5. ठीक है, तो रेंज हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 1, जो रेंज हमारी हो गई है वो 1 से लेकर 6 तक एक आपका बढ़ जाएगा ये. और जब आपका रेंज में 1,6 यानी कि इस तरीके से ये आ जाएगा, ये रेंज के बाद 1,6 आया, तो इसके हिसाब से जब हम लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट जब बनाएंगे हम, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये हमारी लिस्ट आ जाएगी है. ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है मैंने आपको यहाँ पर. ठीक है, तो अब हमारी क्या है, यहाँ पर रेंज फंक्शन भी डिफाइन हो गया है. रेंज फंक्शन डिफाइन होने के बाद आपका हर नंबर, जो भी नंबर आपका रेंज के अंदर है, हर नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है. तो अब लिखेंगे f = f इंटू आई, क्योंकि i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपकी बढ़ रही है यहाँ पर. ठीक है, फिर हम लास्ट में प्रिंट करा सकते हैं. यहाँ पर लास्ट में हम प्रिंट करा देते हैं कि फैक्टोरियल कितना आया. तो लिख देते हैं यहाँ पर द फैक्टोरियल ऑफ नंबर. ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद f. ठीक है, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, हाउ टू फाइंड आउट द
फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं हम लोग। सेव करके अब हम रन करेंगे। सेव करके हम इसको रन कर देते हैं। चलिए रन करने के बाद अब हमारे सामने जो नंबर है वो हमसे पूछा जा रहा है। सपोज करिए नंबर हमने दे दिया 5। ठीक है, नंबर हमने दे दिया 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 4 3 2 1 ये जो नंबर्स हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो हमारे पास जो लिस्ट में है यही नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फैक्टोरियल आएगा 120। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह करके हम अपना जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल के बाद अब हम यहाँ पर एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रोग्राम है ये। राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फिबोनाची सीरीज टू प्रिंट द फाइंड। ठीक है, टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है। तो पहले मैं फिबोनाची सीरीज आपको बता दूं। मैं फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एक नंबर की सीरीज है, ये एक नंबर की सीरीज है। तो इस नंबर की सीरीज में क्या होगा, आपका जो भी प्रीवियस यानी प्रीसीडिंग के 2 नंबर्स होंगे वो आपस में ऐड होंगे, जो नया नंबर आएगा नए नंबर की एक सीरीज बन जाएगी। जैसे मैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है, ये कुछ नंबर की सीरीज है ये। ठीक है, नंबर की सीरीज है। अब अगर मैं इसी को फिबोनाची सीरीज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 0 और 1 को जोड़ेंगे, 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आ गया। अब उसके बाद 0 और 1 में आ गया। फिर इसके बाद आगे हम और जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया आपने, 0 में 0 जोड़ा तो आपका 0 ही आया। फिर इसके बाद 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपके प्रीसीडिंग के 2 नंबर है उसको आपको ऐड करते हुए चलना है आपका। ठीक है, जो भी आपके प्रीसीडिंग के 2 नंबर हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखा, 0 के बाद 1 आपका आ गया। फिर इसके बाद जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज यहाँ आती जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको जो फिबोनाची सीरीज है उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एग्जैक्ट जो फिबोनाची सीरीज है वो कुछ इस तरह से होती है। ये मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसे, सबसे पहले यहाँ हो गया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद अगेन 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ठीक है, ऐसे करते ही आपका बढ़ता रहेगा ये। तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज है। अब आप यहाँ पर 0 और 1 इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ओके, तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज है ये। अब इस फिबोनाची सीरीज को करने के लिए सबसे पहले 2 वैल्यूज आप इनिशियलाइज करिए। एक तो ये हो गया, दूसरा हमने, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमें शुरू के 2 नंबर्स में जोड़ने भी हैं। तो 2 नंबर मैंने डिफाइन कर लिए, एक A और दूसरा B। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम लगाएंगे फॉर लो, फॉर i in, फिर यहाँ रेंज हो गया हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो रेंज को स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 को स्टार्ट करने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे n + 1 जैसे कि हमने पहले किया था। और ये जो n है वो n क्या है, यहाँ पर जो हमने नंबर इनपुट किया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इंट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट लगाइए, यहाँ लिखिए इंटर द
लेवल, किस लेवल तक आपको सीरीज चाहिए, इंटर द लेवल अप टू विच द सीरीज needs to be printed। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये हो गया। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, नंबर को जोड़ना है तो एक नए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए प्रिंट सी लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ने के बाद वैल्यू को यहाँ पर एक्सचेंज करना है। वैल्यू को एक्सचेंज करना है कैसे, a इक्वल टू बी कर दिया और b इक्वल टू सी कर दिया। ठीक है, और ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि जब कभी भी यहाँ पर फिबोनाची सीरीज की बात आती है तो यहाँ पर दो वैल्यूज इनिशियलाइज करने के बाद, ठीक है, जब हम फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर में n हम लिख देंगे ताकि हमें लेवल पता चल जाए किस लेवल का चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 8 तो ये आपका 1 से 8 तक यानी कि 7 तक के जो नंबर्स हैं वो हमारे कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर मैंने कमेंट यूज़ कर लिया हैश। ठीक है, कमेंट आपने यूज़ कर लिया और ये हैश में मैं समझा देता हूँ यहाँ पर 1 और n+1। सपोज करिए मैंने 8 इंटर किया तो 8 का मतलब क्या हुआ 1,7। 1 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक आपके वैल्यूज यहाँ पे इनपुट हो जाएंगी। अब इतना करने के बाद अब आगे क्या लिखा है, a इक्वल टू a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, दो वैल्यू जोड़ी, c में 1 आ गया, 1 हमने प्रिंट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर a की जो वैल्यू है, सॉरी a इक्वल टू b है, b में हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर b में ऑलरेडी हमारे पास 1 है तो a इक्वल टू 1 हो गया, और c में अभी भी क्या हमको मिला है, c में अभी भी हमको क्या मिला है, हमको यहाँ पर मिला है 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यू दोनों हमारी क्या हो गई, दोनों 1 1 हो गई, 1 1। अब आपका दोबारा से यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ ऐड होगा 2 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एडिशन आपका होता रहेगा। ये चलिए मैं को सेव करके रन करा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लेवल, क्या लेवल है आपका, कि सीरीज का जो लेवल है क्या होना चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं, सपोज करिए मैंने 8 दे दिया। 8 देने के बाद देखिए 1 1, 2 2, 3 3 से लेकर 13 21 34। ठीक है, ये हमारी सीरीज अभी बन के आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर, जो हमने वैल्यूज यहाँ इनिशियलाइज किए हैं यहाँ पर आप दोनों को प्रिंट कर लें ताकि आपके शुरू के नंबर्स आपके फिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद बाकी के जो नंबर्स हैं यहाँ से लेकर आगे जो नंबर्स हैं वो हम रेंज फंक्शन से निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और मैं आपको लॉजिक में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ पर 1 और 8 आपने नंबर लिया तो ये 1 से लेकर 7 तक की लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू में पता है 0 और 1, तो c में हमारा 1 आ गया ये। ठीक है, उस 1 को हमने प्रिंट कर लिया। अभी तक जो सीरीज बनी है हमारे पास क्या क्या बन गई है, हमारे पास 0 1 1, यहाँ तक की सीरीज हमारी पूरी हो गई है। अब a इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और c हमारी वैल्यू क्या आई है अभी को 1, तो a और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1 और 1। अब यहाँ 1 + 1 ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह करके हमारी जो सीरीज है वो आगे बढ़ती रहेगी। So students, I hope you are able to understand what I am trying to teach here. Okay, now students, it's time to finish up this video and we'll meet in next video. So I hope each and everything is very much clear to you. Okay, you can contact me on WhatsApp, okay, or you can make a call to me also, so, okay, if you have any kind of doubt. Okay, students, so I think you have completed the watching of this video and you have
understood each and everything. But if you still have some kind of doubt, some kind of questions, I'm always with you. With this, I just want to say thank you so much for watching this video. And one more thing, please subscribe my channel and press the bell icon for the notification of the latest videos. So one more time, thank you so much for watching this video.